So we'll start with magnetism and matter today. So this is mostly a theoretical chapter basically, where few derivations come in exam, but yeah, obviously जो वेटेज ज़्यादा है वो ज़्यादा theoretical portions पे ज़्यादा वेटेज है. Derivation बहुत ज़्यादा इनसे नहीं पूछा जाता है. Derivation जो हम लोगों ने पहले किए हैं chapters वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, but because दिया हुआ है हम लोगों को करना है और हो सकता है पूछ ले, तो इस वजह से डेरिवेशन एग्जाम में तो देख के जाना ही पड़ेगा. बट हाँ, वेटेज कम होता है इसका, सो और चांसेस कम होता है आने का. सो न मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म, a naturally occurring ore of iron attracts small pieces of iron towards it. तो एक ore of iron है जो कि small pieces of iron को अपनी तरफ attract करता है. ये जो naturally occurring ore है, this ore was found in the district of Magnesia in Asia Minor in Greece, and hence the ore was known as magnetite. ठीक है, तो ये जो magnetite ore है, it was found to attract certain small pieces of iron, and because it was found in Magnesia in Asia Minor in Greece, and that's why it was named as magnetite. The phenomena of attraction of small bits of iron, steel, cobalt, nickel, etc. towards the ore was called magnetism. तो ये अलग अलग आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को, निकल को, इन सब को ये ओर जो है अट्रैक्ट कर रहा था अपनी ओर, और इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग मैग्नेटिज्म कहते हैं. सो दिस फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज मैग्नेटिज्म. नाउ द iron ore showing this effect was called natural magnet. The structural formula of this natural ore was Fe3O4. तो magnetite जो है, this is Fe3O4, इसका structural formula. So and this basically is called a natural magnet. Okay. Now the Chinese discovered that a piece of magnetite, when suspended freely, always points out roughly in the north-south direction. तो बेसिकली यहाँ पे आके हम लोगों का कॉम्पस का ये इन्वेंशन हुआ. तो ये किन्होंने किया? चाइनीज ने किया बेसिकली. और ये सी वगैरह में जब जाते थे सेलर्स, तो उनको डायरेक्शन ढूंढने में बड़े आसानी होती थी इससे. तो Chinese discovered that a piece of magnetite, when suspended freely, always points out roughly in the north-south direction. So a magnetic compass based on directive property of magnets was used by navigators to find their way in steering the ships. तो जो ships वगैरह से एक देश से दूसरे देश या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाते थे, उनको डायरेक्शन पता करने के लिए ये जो मैग्नेटिक कॉम्पस का डिस्कवरी हुआ, इससे इन्वेंशन हुआ, उससे उन लोगों को बहुत हेल्प मिलने लगा. That is why magnetite was also called lodestone. Lodestone का मतलब in the sense of leading stone. Leading stone मतलब वो lead करता है, आपको डायरेक्शन बताता है. तो lodestone इसका नाम पड़ा. Magnetite because ये डायरेक्शन बताता था और ये नेविगेशन पर्पस में यूज होने लगा. तो मैग्नेटाइट जो नेचुरल मैग्नेट है Fe3O4, ये अब लोडस्टोन के नाम से जाना जाने लगा, जिसको हम लोग लीडिंग स्टोन भी कहते हैं. क्लियर है सभी को? Now the natural magnets have often irregular shape and they are weak. तो ये जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं, ये कोई ऐसा जो हम लोग देखते हैं कि भाई लूडो के साथ हमारा एक मैग्नेट आता है ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का, बटन शेप का. दूसरा हम लोग एक देखते हैं कि भाई ये बार मैग्नेट जैसा एक मैग्नेट आता है. तो ये सब जो है ना, ये सब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, ये सब नेचुरल मैग्नेट नहीं है. नेचुरल मैग्नेट तो एक पत्थर के आकार का होगा, स्टोन के शेप का, इररेगुलर शेप होगा. So natural magnets have often irregular shape and they are weak also. उतना strong नहीं रहता है, weak रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे impurities रहते हैं, जिसके वजह से इसका strength कम हो जाता है. Now it is found that a piece of iron or steel can acquire magnetic properties on rubbing with a magnet. Such magnets made out of iron and steel are called artificial magnet. So it has been found that piece of iron and steel, when they are rubbed over
a natural magnet, then it acquires certain magnetic properties, and these magnets which are made up of iron, steel, uh, etc., these are known as artificial magnets. Artificial magnets can have desired shape and desired strength. So a bar magnet, a horseshoe magnet, तो ये बार मैग्नेट तो हमने यहाँ बना के दिखाया ही था. हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस तरीके से होता है. ठीक है, ये यहाँ पे ये इस तरीके का. ठीक है, so this is a horseshoe magnet. Then we have a magnetic needle, जो हम लोग कॉम्पस में यूज करते हैं, वो इस तरह का एक नीडल शेप का रहता है. इसको हम लोग कॉम्पस में यूज करते हैं. कॉम्पस, नीडल एक्सेट्रा, ऑल आर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो ये सब जगह जो हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं एक पर्टिकुलर शेप का, ये सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट्स का अपना कोई शेप नहीं हो. क्लियर है बच्चों? अब बार मैग्नेट के बारे में अगर पहले पढ़ाई करें, सो बार मैग्नेट क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो बार मैग्नेट में बेसिकली आप देखो कि ये नॉर्थ और साउथ है ना, इसमें दो पोल्स होते हैं, राइट. और इस बार मैग्नेट के पास आप अगर एक व्हाइट शीट ऑफ पेपर के नीचे इस बार मैग्नेट को रख दो और उसके ऊपर ये आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं और इसको धीरे धीरे टैप करेंगे, तो जब आप टैप करोगे तो ये इस तरह का शेप ले लेगा. आयरन फिलिंग सारा इस तरह का शेप ले लेगा. तो ये जो शेप है जो आयरन फिलिंग्स ले रहा है, इस शेप को बेसिकली हम लोग, so this shape is basically known as, so these are the magnetic field lines, which tells you the direction in which the magnetic field is there between these, around this bar magnet. So it is the most commonly used form of an artificial magnet. जो bar magnet है सबसे common used form है. The pattern suggests that attraction is maximum at the two ends of the bar magnet. तो यहाँ पे अगर आप ये जो पैटर्न देखोगे आयरन फिलिंग्स का, ये क्या बताता है? तो सबसे ज्यादा डेंस तुम देखोगे आयरन फिलिंग यहाँ पे, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में. तो जहाँ पे हमारा ये पोल्स है वहां पे सबसे ज्यादा डेंसिटी है आयरन फिलिंग का, जो कि बताता है कि अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द टू एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट. तीसरा है, these ends are called poles of a magnet. ये जो एंड पॉइंट है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इस तरह से. सो these ends are called poles of a magnet. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Now some basics of magnetism. So some of the commonly known ideas of magnetism are, first is the earth behaves as a magnet. earth के अंदर खुद भी हम मानते हैं कि एक मैग्नेट है. तो बेसिकली मैग्नेट नहीं होता है वो, उसका दो तीन थ्योरी है जो कि अभी हम लोग देखेंगे. उनमें से अभी कोई भी थ्योरी को एग्जैक्टली ट्रू हम लोग नहीं मानते. तो अर्थ बेसिकली जब भी आप कोई मैग्नेट को हैंग करते हो तो उसका जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ आ जाता है. तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है जिसका कि साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ है और इसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ पोल के तरफ है. ठीक है. और ये जो इसके वजह से, बिकॉज ये साउथ पोल इस मैग्नेट का इधर नॉर्थ के तरफ है, तो कोई भी मैग्नेट जब हम लोग लटकाते हैं यहाँ पे, तो उसमें उसका जो नॉर्थ पोल है that always points towards the north pole of earth. Why? Because उसके अंदर जो मैग्नेट है वो साउथ उधर है, तो नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करता है, and that's why it points towards the north pole of the earth. So this is as if a huge bar magnet is held at the center of the earth, with its north pole pointing approximately towards the geographic south, and the south pole of the imaginary bar magnet would point approximately towards geographic south. ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा रीजन है. अब ये जो नॉर्थ और साउथ पोल है इस मैग्नेट का, यहाँ पे जो मैग्नेट अंदर है, वो मैग्नेटिज्म आता कैसे है कि दो थ्योरी है. पहला थ्योरी कहता है कि जब अर्थ ऐसे
रिवॉल्व कर रहा है, जो सबसे ज्यादा ट्रू माना जा रहा है अभी। तो अर्थ जब रिवॉल्व करेगा, नहीं सॉरी रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, तो वहां पे क्या होता है कि इसके अंदर, अर्थ के जो कोर के अंदर, सो यू हैव मॉल्टन मटेरियल इनसाइड इट। तो ये जो मॉल्टन मटेरियल है, इस मॉल्टन मटेरियल के अंदर यू हैव डिफरेंट आयंस प्रेजेंट इन इट। तो जब ये आयंस रोटेट करेगा, तो रोटेशन ऑफ आयंस, के आयंस हैव चार्ज कैरिंग इन इट, आयंस कैरी चार्ज, और वो जो चार्ज जब रोटेट करेगा इस तरह से, तो ये सर्कुलर लूप बनाएगा, है ना, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। ये जो करंट होगा सर्कुलर लूप का, और करंट के वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे राउंड करंट कैरिंग कंडक्टर है सर्कुलर, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे भी सेम मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तुमको साउथ और नॉर्थ ऐसे दिखता है, दो पोल्स दिखते हैं। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. नाउ सेकंड वाला जो पॉइंट है, every magnet attracts small pieces of magnetic substance like iron, cobalt, nickel and steel towards it. The attraction is maximum at the two ends of the magnet as shown in the figure. These ends are called the poles of the magnet. तो जो पीछे हम लोगों ने इस फिगर देखा था, नॉर्थ और साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे मैक्सिमम अट्रैक्शन, और ये जो पोल्स होते हैं ना, वो इसके नेचुरल लेंथ के थोड़ा अंदर होता है ना, एग्जैक्टली बॉर्डर पे नहीं होगा, बट थोड़ा अंदर की तरफ होगा। तीसरा पॉइंट है, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ एन अनस्पन थ्रेड, इट कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो अभी हम लोग बात किए भी थे। तो poles exist always in pairs. Two poles of magnet are always unlike but of equal strength. So further poles, north and south, are situated a little inwards from the geometric ends A and B. तो ये जो geometric end A और B है, इसके थोड़ा सा अंदर की तरफ A और B, जो नॉर्थ और साउथ पोल होता है, of, ठीक है, A and B of the magnet. The magnetic length north south of magnet is roughly 6/7 of its geometric length AB. तो geometric length जो AB है ना, उसका 6/7, ये नॉर्थ साउथ के बीच में डिफरेंस है, 6/7 ऑफ ये भी लेंथ। मान लो टोटल लेंथ 12 है, तो इसका 6/7 टाइम्स इसका लेंथ होता है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि एक नॉर्थ पोल यहाँ पे है और दूसरा साउथ पोल कहीं और है ना, अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं। एक ही बॉडी पे दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो हमेशा साथ में एग्जिस्ट करेंगे। अगर नॉर्थ पोल होगा तो उसी ऑब्जेक्ट में साउथ पोल भी होगा, ठीक है। So North Pole and South Pole exists in pair. They do not exist separately. The distance between North and South Pole is 6/7 times the length of the geographic length. ठीक है? Now the straight line x dash, तो जो हमें straight line दिख रहा है x dash, right? Passing through the north south poles of the magnet is called axial line. And अगर हम लोग देखोगे, ये देखो, ये जो x डैश है, ये मैग्नेट से जो पास कर रहा है, इसको, इस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. उसके अलावा द लाइन y डैश through the center of the magnet in a direction perpendicular to the length of the magnet is called equatorial line of the magnet. तो ये जो x डैश था, ये हमारा एक्सियल लाइन हो गया, और ये y डैश जो है, ये हमारा इक्वेटोरियल लाइन हो गया। ये हम लोग वहां पे भी किए हैं, जब हम लोग डाइपोल्स कर रहे थे, तो एक्सियल प्लेन और इक्वेटोरियल प्लेन में हम लोग निकालते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे हम लोगों ने ये किया था, राइट। तो जो लाइन एक्स डैश मैग्नेट से पास कर रहा है, राइट, लेंथ के अबाउट,
नॉर्थ साउथ से पास करने वाला, उसको हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। और परपेंडिकुलर टू जो नॉर्थ साउथ एक्सियल लाइन के जो परपेंडिकुलर होगा सेंटर ऑफ मैग्नेट से पास करता है उसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। The straight line joining north and south poles of a freely suspended magnet represents magnetic north-south direction. तो अगर freely suspended magnet है तो a straight line joining north and south pole of a freely suspended magnet represent magnetic north-south direction, and the vertical plane PQ passing through north-south direction of a freely suspended magnet is called magnetic meridian. तो ये जो वर्टिकल प्लेन है उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन. ओके, सो लाइक पोल्स, फोर्थ वाला आप देखिएगा तो ये देखो ये एक प्लेन है, वर्टिकल प्लेन पी क्यू है, ये वर्टिकल प्लेन है. ये वर्टिकल प्लेन क्या है? इट इज पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन, मतलब उसी प्लेन में नॉर्थ साउथ वाला लाइन ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. इस प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं. ठीक है, पासिंग थ्रू नॉर्थ साउथ लाइन. नाउ लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. तो आप अगर नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाओगे तो रिपल्सन होगा, उसी तरह साउथ साउथ को पास में लाओगे तो भी रिपल्सन होगा, और अगर आप नॉर्थ साउथ को साथ में लाओगे तो वहां पे अट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. The force of attraction or repulsion F between two magnetic poles of strength M1 and M2 separated by a distance R in a space is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to the square of the distance between their centers. तो इसको basically Coulomb's law of magnetic force बोलते हैं. सेम Coulomb's law जैसा है, F Q1 Q2 by R square था, F is proportional to, sorry यहाँ प्रोपोर्शनल टू साइन होगा. सो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K टाइम्स M1 M2 बाय R स्क्वायर, वेयर K इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट. K का वैल्यू क्या है? म्यू नॉट बाय 4 पाई है, 10 टू द पावर -7. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फोर्स F इज म्यू नॉट बाय 4 पाई into M1 M2 by R square. So where mu naught is absolute magnetic permeability of free space. Now this is called Coulomb's law of magnetic force. ये जो हमारा है ना, इसको Coulomb's law. तो देखो सिंपल बिल्कुल वैसा ही है. जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक पोल्स इज K M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स कुलम्स लॉ जो हम करते थे वो क्या करते थे? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. यहाँ पे जो K का वैल्यू था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है. ठीक है, और यहाँ पे जो K का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. अब सिक्स्थ वाला है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नेवर बी सेपरेटेड, दैट इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. एग्जिस्ट करेगा, थ्योरेटिकली एग्जिस्ट करेगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. इंडक्टिव प्रॉपर्टी. So when a piece of magnetic material like soft iron, cobalt, nickel, etc. is placed near a bar magnet, it acquires magnetism. The magnetism so acquired is called inductive magnetic, induced magnetic and induced magnetism बोलेंगे basically इसको. So this is known as induced magnetism, and this property of magnetism is inductive property. So induced यहाँ पे magnetism. क्लियर है बच्चों?
Now, स्वप्निल कहाँ था बेटा? रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. देखो, अट्रैक्शन अगर है तो ये तो चार्ज की वजह से भी अट्रैक्शन हो सकता है, राइट? तो रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म. So suppose we have two identical pieces, one is iron and other is magnet. To distinguish which is which, we take another bar magnet. This bar magnet would attract the iron piece, and also one end of this bar magnet would attract the opposite pole of the given magnet. Now, however, one end of this bar magnet would repel only like poles of given magnet. So hence, when repulsion occurs between the testing bar magnet and one of the two given pieces, that piece must be a magnet. That is why we say that repulsion is sure test of magnetism. मतलब दो अगर ऑब्जेक्ट है, उनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट मैग्नेट और दूसरा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, इसको चेक करने के लिए रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट. मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, तुम चाहे आयरन को के पास लेके जाओ चाहे कोई मैग्नेट के पास लेके जाओ, दोनों उस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो. मैग्नेट का एक एंड तो अट्रैक्ट होगा, एक पोल जो लाइक अनलाइक पोल होगा, बट अगर लाइक पोल के तरफ लेके जाएंगे तो वो रिपेल होगा. बट आयरन को दूसरे तरफ से भी हम अगर अप्रोच करेंगे तो वहां पे भी अट्रैक्शन ही होगा. तो इसीलिए मैग्नेट अगर है तो एक वाला एक डायरेक्शन पे आपको अट्रैक्शन मिलेगा, तो दूसरे वाले साइड में आपको रिपल्सन मिलेगा. अगर ऐसा होता है तो वो मैग्नेट है. अगर दोनों तरफ से अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है. We can make artificial magnets out of iron and its alloys. तो आयरन और उसके एलॉयज से हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था अभी, स्टील से, आयरन से और कोबाल्ट से, निकल से, इन सब से हम लोग मैग्नेट बनाते हैं. ठीक है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे. So magnetic field line is an imaginary curve, the tangent to which at any point gives us the direction of magnetic field. मान लो ये हमारा magnetic field line, इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो जो यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे उसका जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. उसी तरह यहाँ पे जो टेंजेंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. So magnetic field line is an imaginary curve, the tangent to which at any point gives us the direction of magnetic field B at that point. The path along which the compass needles are aligned is known as magnetic field line. तो ये जो पाथ है जिसके along, मान लो हमारा, हम लोग क्या करते हैं, जो बार मैग्नेट वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग ने 10th क्लास में समझा था, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पस को ऐसे रखते जाते हैं और जिधर ये कॉम्पस अलाइन होता जाता है इसका, तो उस डायरेक्शन में बेसिकली मान लो ये एरो ऐसे बन रहा है, एरो ऐसे बन रहा है, तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देते जाता है. तो फाइनली इन सबको जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाती है. सो पाथ अलोंग विच द कॉम्पस नीडल्स आर अलाइंड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन. XY represents a magnetic field line. तो मान लो ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है X से लेके Y. So XY represents a magnetic field line. At any point P on the line, we have drawn a taut PA. Drawn a tangent होगा. So drawn a tangent PA to the curve XY. This tangent PA represents the direction of magnetic field B at P. ठीक है. तो ये जो tangent है P पे, जो PA इस point पे, that will give you the direction of P. Magnetic field is a region. In a region is said to be uniform if the field has same strength and same direction at all points in the region. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हर पॉइंट पे सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा. मतलब आपको जो है पैरेलली दिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट पैरेलल फील्ड लाइंस एज शोन इन फिगर. तो ये इस तरह से अगर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं आपको
तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर. So this is uniform magnetic field in the plane of paper. ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये सेकंड वाला जो फिगर है, so above in the figure B represents a uniform magnetic field perpendicular to the plane of paper and going inwards. ये ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज जानते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इक्वी डिस्टेंट है. और क्रॉस है मतलब गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. डॉट्स हैं मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर. सो फिगर सी represents a uniform magnetic field perpendicular to the plane of paper and outward. B वाला इनवर्ड था, A वाला आउटवर्ड था और A वाला B वाला इनवर्ड था, C वाला आउटवर्ड था और A वाला is in the plane of paper only. Now properties क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का? पहला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट form closed continuous loop or of a solenoid carrying current forms closed continuous loop. तो ये देखो हम लोगों ने मैग्नेट का देखा था, नॉर्थ है साउथ है, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा और वापस फिर नॉर्थ से होके निकल जाएगा. तो ये हमारा क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप है, कहीं पे भी ये लूप खत्म नहीं हो. क्लियर है? नाउ so this is unlike electric field which begins from a positive charge and ends on a negative charge. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था? पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव में एंड हो जाता. यहाँ पे एंड कहीं पे भी नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ये हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप ही बनाता है. सेकेंड पॉइंट है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. तो मैग्नेट के बॉडी के बाहर मतलब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा. और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? साउथ टू नॉर्थ होगा. So outside the body of the magnet, the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole. At any given point, tangents to the magnetic field line represent the direction of net magnetic field. किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो हमें डायरेक्शन बताता है नेट मैग्नेटिक फील्ड. The magnitude of magnetic field at any point is represented by a number of magnetic field lines passing normally through unit area around that point. So magnitude of magnetic field at any point is represented by a number of magnetic field lines passing normally through unit area around that point. ये हम लोग 10th क्लास में भी देखे थे कि नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों भाई? क्योंकि P पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो पॉसिबल नहीं है. मतलब जो ये ऊपर वाला रे है उसका टेंजेंट ये हो गया, नीचे वाला जो कर्व है उसका टेंजेंट ये हो गया, तो दो अलग अलग कर्व है तो उनका मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकता है. सो नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट क्योंकि P पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के, विच इज नॉट पॉसिबल. So because as shown in the figure at the point of intersection say P, we can draw two tangents PA and PBC. ठीक है, PA and PC कर लो, PBC कुछ नहीं. PA and PC to the two magnetic field lines. This would mean two direction of magnetic field at the same point P. This is not possible. Sixth वाला देखो, magnetic fields have a tendency to contract longitudinally indicating attraction between unlike magnetic poles. तो ये जो magnetic field lines है, they have a tendency to contract longitudinally indicating attraction between unlike magnetic poles.
अब मैग्नेटिक डाइपोल हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. A magnetic dipole consists of two unlike poles of equal strength and separated by a small distance. For example, a bar magnet, a compass needle, etc. are magnetic dipole. तो ये बेसिकली आप मैग्नेटिक डाइपोल यहीं पे देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो टू opposite poles separated by a small distance is known as magnetic dipole. So, two unlike poles of equal strength and separated by a small distance are known as magnetic dipole. Now, the distance between the two poles of a bar magnet is called magnetic length. दो पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ. ये 2l जो दिख रहा है. सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा, साउथ से लेके नॉर्थ तक होगा. तो इट इज अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट टू इट्स नॉर्थ पोल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 2l. इसको हम लोग 2l से रिप्रेजेंट करेंगे और ऊपर ये वेक्टर साइन दिया हुआ. ठीक है. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ आइदर पोल m एंड इट्स मैग्नेटिक लेंथ 2l. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू m into 2l. So it is denoted by capital M. Magnetic dipole moment is capital M. So magnetic dipole moment is strength of either pole into magnetic length. So capital M is equal to small m into 2l. Now magnetic dipole moment is a vector quantity directed from south to north of the magnet. So magnetic dipole moment, मान लो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, साउथ से लेके नॉर्थ तक इट इज directed. The SI unit of capital M, that is magnetic dipole moment, is joule per Tesla. ठीक है. और एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये दो यूनिट होते हैं SI यूनिट अपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का. Now SI unit of pole strength is एम्पियर मीटर. तो जो पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, उसका ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर है. अब द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज m0l² t0i. i मतलब ये एम्पियर का a भी लिख सकते हो. ठीक है. तो करंट के लिए I लिखा है, तुम कैपिटल A भी यूज कर सकते हो. m0l² t0i and the dimensional formula of pole strength is m0l1 t0i. ठीक है. तो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ है ना, पोल स्ट्रेंथ m इंटू लेंथ करते हैं तब डाइपोल मोमेंट मिलता है. तो यहाँ जो l² है इसको l से डिवाइड कर देंगे तो m0l t0i होगा. ये पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला और मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m0l² t0i होता है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Just give me 1 minute ना, थोड़ा सा मैं बोल के गला सूख रहा है. Just give me 1 minute. Yeah. So magnetic field strength at a point due to a bar magnet. So the strength of the magnetic field at any point is defined as the force experienced by a hypothetical north pole placed at that point. It is a vector quantity. तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग B बोलते हैं, कैपिटल B, एट एनी पॉइंट, उसका डेफिनेशन क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट. मान लो यहाँ पे कोई नॉर्थ पोल रखते हैं, उस नॉर्थ पोल पे अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है वो बेसिकली हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है.
और वो फोर्स जितना लग रहा है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. So force experienced by a hypothetical north pole placed at that point is known as strength of magnetic field. It is a vector quantity. The direction of magnetic field B is the direction along which hypothetical unit north pole would tend to move if free to do so. So ये जो direction of magnetic field क्या है, वो direction है जिधर ये north pole move करने की मतलब tendency होगी इसकी, जब हम लोग इसको छोड़ दें move करने के लिए. Note that we have used the word hypothetical unit north pole क्योंकि जो मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. हमेशा जो मैग्नेट है डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. नॉर्थ होगा तो साउथ भी होगा, ठीक है, साथ में एग्जिस्ट करेगा. तो हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल जो यहाँ पे डेफिनेशन में इसलिए यूज किया गया है, दिस इज बिकॉज एन आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट. द सिंपलेस्ट मैग्नेटिक स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल. ठीक है, तो जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है वो मैग्नेटिक डाइपोल है. मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए इसको हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल बोला गया है. ठीक है. नाउ व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट, मान लो ये जो पॉइंट है जिस पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट एक्सियल लाइन पे कहीं पे लाई कर रहा है पॉइंट पी. So let 2L be the magnetic length. ये magnetic length 2L हो गया of a bar magnet with pole strength M. तो यहाँ पे pole strength M है and center यहाँ पे इसका O point पे है. यहाँ पे M is the magnetic dipole moment of the magnet where capital M will be equal to pole strength into the length of the magnet. M into 2L हो गया. ठीक है. So pole strength into the length of the magnet. ना ओपी यहाँ पे डी है जो सेंटर ऑफ द मैग्नेट से जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस डी है. सो दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. नाउ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी ड्यू टू नॉर्थ पोल. अब यहाँ पे इस पॉइंट पी पे नॉर्थ पोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम इंटू 1 बाय एन पी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग यूनिट पोल यूनिट नॉर्थ पोल मानते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड का, इसीलिए m इंटू 1 कर रहे हैं. यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ m है, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ हम लोग ने एज्यूम किया है 1 का, राइट. तो इसीलिए इसको हम लोग m इंटू 1 डिवाइडेड बाय एन पी स्क्वायर, जो हमारा फॉर्मूला था पिछली स्लाइड में हमने देखा था m1 m2 बाय डी स्क्वायर k टाइम्स. k क्या था म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू m1 m2 बाय डी स्क्वायर. अब हम लोग कह रहे हैं जो ये m2 है इसमें पोल स्ट्रेंथ 1 है, तो m2 को 1 से रिप्लेस कर लिया और डिस्टेंस np स्क्वायर लिख लिया हमने. सो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय np, जो ये डिस्टेंस है नॉर्थ से लेके पॉइंट p तक, इसका जो डिस्टेंस है इस पूरे d में से इस l को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये लेंथ l है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो लेंथ डिस्टेंस बचेगा ये d माइनस एल बचेगा. तो इसीलिए म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय डी माइनस एल होल स्क्वायर अलोंग np. नॉर्थ पोल पे किधर लगेगा, अलोंग np. क्लियर है बेटा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है ना, इसीलिए अलोंग np हो गया. क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वाले पे आए. साउथ पोल के वजह से अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो साउथ पोल के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्टिव होगा क्योंकि ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है और उसका जो वैल्यू होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई m इंटू 1 बाय एस पी स्क्वायर. तो यहाँ s से हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे हैं p तक का, तो ये बेसिकली d हो गया और ये क्या है l है. तो यहाँ पे sp की जगह क्या लिख लेंगे d प्लस l का होल स्क्वायर. तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन d प्लस l का होल स्क्वायर अलोंग ps. ठीक है. सो अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट p ड्यू टू बार मैग्नेट b1 इज इक्वल टू b माइनस b डैश. तो ये जो बार मैग्नेट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये
टोटल जो बार मैग्नेट की वजह से पी पॉइंट पे होगा, ये बी का वैल्यू ज्यादा है, बी डैश लेस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए बी माइनस बी डैश करेंगे। तो म्यू नॉट एम बाय 4 पाई डी माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बी है, माइनस ऑफ म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट एम बाय 4 पाई डी प्लस एल होल स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट एम बाय 4 पाई को कॉमन ले लो, 1 बाय डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय डी प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम निकाल के, तो नीचे तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर जो डी प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर, इसमें डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पे भी डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2dl और माइनस ऑफ माइनस 2dl मतलब 4dl हो गया, वो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो म्यू नॉट एम इंटू, हम लोग ये 4dl में से 2l को इसके साथ ले आते हैं, m इंटू 2l। ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इसको हम लोग रिप्लेस कर सकें कैपिटल M से। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 कैपिटल M इंटू डी, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कैपिटल M बेसिकली, कैपिटल M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो देखो सिंपल सेम जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में जैसे प्रूव किया था, वैसा ही डेरिवेशन। तो वहां Q1 Q2 था और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था K का वैल्यू, यहाँ पे बस K का वैल्यू चेंज हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई और Q1 Q2 के जगह M1 M2 आ गया। क्लियर है? सो B1 जो है हमारा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2md डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब इसी में अगर d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर l, मतलब द डिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, तो d अगर बहुत बड़ा है तो ये l स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको हटा देंगे, जीरो एज्यूम कर लेंगे, तो d टू द पावर 4 हो गया। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2md अपॉन d टू द पावर 4। सो ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय d क्यूब हो जाएगा। So if you see here, when the magnet is short, that is L square is very very less than D square, then you replace it, you remove the L square and then this gets cancelled and this becomes mu naught by 4 pi 2m by D cube. So the direction of B1 is along NP produced. तो अगर ये मैग्नेट है, ये साउथ है नॉर्थ है, तो इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालना है, तो द डायरेक्शन इज along NP produced, इस डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, we'll stop here for the day and इतना जो है हम लोग शेयर, मैं शेयर भी कर लूंगा ये जो क्लास वाले नोट्स हैं, तो आप लोग अपना इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और जो असाइनमेंट शीट भेजेंगे वो कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। चलो बाय एंड टेक केयर।